Okay, look at the figure very carefully. Line P is parallel to line L, L is parallel to Q. Therefore, the first line is parallel to second, second is parallel to third, means automatically all three lines are parallel to each other. Okay, now we have a point here. From here there is a line. Okay, so we can take this as a transversal, this as a transversal. They said this is 40 degree, the next angle is 30 degree, 40 degree, 30 degree. You have to find A, B and X. प्रॉब्लम के अंदर दिया है, you have to find X. X is nothing, X is the combination, is the sum of addition of A and B. So X find करना है तो we have to find A and B first. Okay, so how will we find? Scene 1, first one is P is parallel to L and this segment is a transversal. Therefore alternate angle A is congruent to 40 degree, so therefore angle A becomes 40 degree. बराबर. Similarly we will consider this, so this becomes 30 degree, angle B becomes 30 degree. Alternate angle test हो गया. Now since angle X is equal to angle A plus B, that is 40 plus 30, 4, 5, 6, 7, that is 70 degree. So our measurement X is equal to 70 degree. मिल गया. एकदम easy problem है. बराबर. The only thing what you have to understand first from the figure is the lines are, all three lines are parallel and you have to use this as a transversal. First case में दो line लो, P and L are parallel line and consider this as a transversal. Use alternate angle test, you get A is equal to 40 degree. Similarly, next step, consider line L and line Q as parallel line. Okay, consider this particular segment as a transversal. 30 degree and angle B are alternate angle. So by alternate angle test, B is equal to 30 degree. Now X is equal to A plus B, angle A plus angle B. Angle addition postulate, और postulate नहीं समझ रहा है तो you can also use the word angle addition property. Therefore X is equal to A plus B, that is equal to 30 plus 40. X is equal to 70 degree. Easy है, समझ में आ रहा है? समझने को क्या है, बच्चा लोग का प्रॉब्लम है. ओके चलो ठीक है. दिस प्रॉब्लम इज ओवर. नाउ not only the problem is over but practice set 2.2 is over. The last set what we have is practice set 2.3. okay, and practice set 2.3 कुछ नहीं है. practice set 2.3 is simple construction. ट्रायंगल वगैरह कंस्ट्रक्ट करना तो भी हार्ड रहता है. लाइन कंस्ट्रक्शन में क्या है, खाली रूलर लेके डिस्टेंस देख के लाइन बनाने का है. बराबर है. सेगमेंट से practice set 2.3 is simple. You are having 2 to 3 sums where you have to draw parallel line from a point given outside the given line. They have given a line, they have given you a point and the distance from the line कितना दूर है. मतलब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में तुमको क्या करने का मालूम है. अभी दिस इज जरूरत फॉर, एक लाइन दिया है, एक इधर पॉइंट दिया है. बराबर. वो पॉइंट के अंदर तुमको क्या करने का है, ये पॉइंट में से यू हैव टू ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इज़ पैरेलल टू दिस. ओके, अभी ये स्केल वगैरह के साथ में लेके बनाएगा तो हो जाएगा. अभी ये पॉइंट दिया है तो इधर क्या करना पड़ेगा. सपोज अरे यार, नाखून काटने के बाद है ना स्केल भी उठाने में प्रॉब्लम होता है. एक जब से कोशिश कर रहा मैं. ओके, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, कंसिडर हियर. किधर था दिस लाइन. डोंट कंसिडर दिस एज अ स्केल. ओके, ऐसा सोचो कि मेरे पास स्केल नहीं है, मेरे पास सेट स्क्वायर है. वो सेट स्क्वायर को क्या करने का है, सेट स्क्वायर को लाइन ऐसा, सेट स्क्वायर को ऐसा लाइन के ऊपर से ये लेके जाने का है. बराबर. इधर देखने का है कितना डिस्टेंस कितना दिया है. दे सेट द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर्स अवे, तो उतना 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने का है. 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, वॉट एवर द डिस्टेंस दे हैव गिवन, उतना दूर एक लाइन प्लॉट कर, पॉइंट प्लॉट करने का है. वो पॉइंट प्लॉट करने के बाद खाली क्या करने का है, एक पॉइंट से तो लाइन नहीं बनेगा, तो थोड़ा दूर के ऊपर वापस सेम डिस्टेंस पे एक और पॉइंट बनाने का है. सेम डिस्टेंस का, लाइन से सेम डिस्टेंस में एक और पॉइंट बनाने का. वो पॉइंट बनेगा 5 सेंटीमीटर, वो पॉइंट बनेगा 5 सेंटीमीटर. वो ओके, दोनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दो. ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स, ऑटोमेटिकली दूसरा पैरेलल लाइन बन गया. ओके, नाउ आई डोंट हैव अ सेट स्क्वायर और अ ज्योमेट्री बॉक्स राइट नाउ. ओके, अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत प्रॉब्लम है.
जब मेरा बच्चा लोग फीस जमा करेगा तो फिर ज्योमेट्री बॉक्स लाएगा तो कंस्ट्रक्शन सिखा सकता है। फ़िलहाल इसमें सिखाने जैसा भी कुछ नहीं है। मैंने इधर लिख दिया है, देख, आई डोंट हैव अ सेट स्क्वायर राइट नाउ, नो ज्योमेट्री बॉक्स नाउ, सो आई सेंड यू द फोटोग्राफ्स। जैसा मैंने बताया अभी थियोरेटिकली जो एक्सप्लेन किया है वैसा ही तुमको करके सेट स्क्वायर यूज़ करना है और यूज़ करके दोनों तीनों प्रॉब्लम का कंस्ट्रक्शन कर देना है। ओके, चलो लेसन नंबर 2 हैज़ एंडेड। लेसन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। फर्स्ट और सेकेंड लेसन बहुत ईजी है 8th स्टैंडर्ड के अंदर। अभी एक्चुअल टफ लेसन चालू होगा। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट है ना, पता नहीं यार लेसन का नाम क्या है। हियर इट इज, ध्यान से देखो। ओके, थर्ड लेसन इज इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेसन है। देन एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, अगेन ज्योमेट्री वाला आ गया, लेकिन ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, पैरेलल लाइन से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके बाद एक्चुअल चालू होगा तुम्हारा प्रॉब्लम इधर, एक्सपेंशन फार्मूला, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएशन। वेरिएशन ईजी है। 5th एंड 6th इज़ वेरी हार्ड। ओके, फर्स्ट टर्म खत्म होएगा, सेकेंड टर्म शुरू ही होता है एकदम हार्ड से। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स, ये तो ग्राफ है, बहुत इजी है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट हार्ड है, एरिया हार्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो बहुत हार्ड है। 17th सर्कल, कॉर्ड्स एंड आर्क। ओके, दिस इज सपोज टू बी अ वेरी हार्ड लेसन, बट इन 8th स्टैंडर्ड सिंस यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू सर्कल, इसके अंदर एकदम ABC लेवल वाला, KG लेवल वाला प्रॉब्लम दिया हुआ है। सो लेसन नंबर 17 विल बी द ईजिएस्ट इन ऑल द 17 लेसन। सबसे ईजी लेसन तुमको सर्कल्स होने वाला है लास्ट का। ओके, पार्ट 2 जो शुरू होगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ओके, 8 में से समझ लो 7 लेसन तो बहुत टफ है, स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के। उसमें तो ग्राफ है, जिसका ड्राइंग अच्छा रहेगा, जो नीट एंड क्लीन बनाएगा, उसको ही मार्क्स मिलेगा। ओके, एंड जनरली 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स you always get in your examination paper, if you get a problem to draw a graph, you will always have an option, either graph करने का है या दूसरा कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा हार्ड वाला 4 मार्क्स का। सो ऑलवेज आई विल प्रीफर दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डायग्राम एंड ग्राफ, यू ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ग्राफ छोड़ देने का। ग्राफ कितना भी अच्छा बनाएगा तो टीचर 4 में से 3 ही मार्क्स देगी, फुल 4 आउट ऑफ 4 देगी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राफ के अंदर तुम कितना भी नीट बनाओ, ड्राइंग के अंदर टीचर 1 मार्क काटती है, काटेगी। तो जिसको अगर समझो फुल मार्क्स लेना है मैथ्स में, तो दे विल ऑलवेज इग्नोर द ग्राफ एंड दे विल सॉल्व द अदर प्रॉब्लम विच एवर इट इज। ओके, तो वो करने के लिए हम लोग को बाकी सब लेसन एकदम थरो करना पड़ेगा। चलो, लेसन नंबर 2 इज़ ओवर। वीडियोस आने के बाद में आई विल सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 एंड 5 solutions from the guide. You have to copy each and every solution in your tuition book 5 times. I repeat 5 times. 5 times करने का है और पूरा समझ के लेने का है। ओके, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बाहुबली स्टिक नहीं पड़ेगी, ये सोच के तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा होएगा। ओके हरीश, बुक्स का पेजेस बचाने के चक्कर में होमवर्क नहीं करेगा तो मैं बोलूँगा तू फिर पागल मारवाड़ी है। पागलगिरी नहीं करने का, अपने को पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बिकॉज जितना ज़्यादा अच्छे से तू मैथ्स करेगा उतना आगे चल के अच्छा धंधा वाला बनेगा। तू बिजनेसमैन बहुत टॉप का बनने का है तो मैथ्स में एकदम प्रोफिशिएंसी हासिल करो। यू नीड टू बी वेरी स्कॉलर एंड वेरी प्रोफिशिएंट विद मैथ्स इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। ओके, चलो, और अपना दूसरा कौन है, ये बिडलान। ओके, हाँ, तू तो वैसे भी मतलब मैथ्स में तो अच्छा ही चलता है, बाकी सब बच्चों से अच्छा ही करता है तू मेरे पास जितने भी है। फेबियन है, फिर फेबियन, हरीश और तू है बराबर। और लास्ट में एक लड़की आई थी, वो तो गई छोड़ के, काव्या। मेरे को लगता नहीं वो वापस आएगी, 2 महीने का फीस डुबा के गई है तो अब क्या आएगी, भूल जाओ। ओके, तो फ़िलहाल तो बिडलान ही है जो मैथ्स में सबसे टॉप चलता है तुम तीनों के अंदर से। फेबियन से मेरे को उम्मीद भी नहीं है क्योंकि वो महीने में 2 दिन तो आता है। ओके, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बेटा। वो कैसा है,
स्कूल में टीचर का बेटा है, इसलिए बाकी के स्कूल के टीचर्स लोग उसके साथ लीनियंट रह के उसको कैसा भी पास कर देंगे। ओके, अपना ऐसा कुछ नहीं है, अपने को अपने दम पे ही पास होने का है, अपनी मेहनत से पास होने का है, बराबर। तो मेहनत करो साहिल बिडलान और हरीश, तुम दोनों को तो मेहनत से ही पास होने का है। तो होमवर्क में कंजूसी करना नहीं, डू योर होमवर्क वेल। उधर राजस्थान में बैठा है, मैं मार नहीं सकता है तो क्या हुआ, मैं तेरे पापा को बोलेगा मारने के लिए अगर होमवर्क नहीं किया रहेगा तो, मामा को भी बोलेगा, डबल जगह से धुलाई होएगा तेरा, मैं फ़ोन कर करके बोल देगा। चलो बाय, लेसन ओवर, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन टुमारो।